Morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Radhada. Student, today I am taking the another more important question related to chapter number 6 of the class 12 physics from the NCERT. The name of the chapter electromagnetic induction. Okay, student, today's question that means in short form Faraday's law of electromotive force. क्या बोला हमने? Faraday's law of Faraday's law of electromotive force. Okay, student, in the short form Faraday's law of electromotive force. But exam point of view से according to the exam point of view paper pattern question रिप्रेजेंट इन द फॉर्म. क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है स्टूडेंट? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फर्स्टली डिफाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सेकेंड वन स्टेट Faraday's law of electromagnetic induction. Also write down Faraday's law of electromagnetic induction. In another way, write down the law of electromagnetic induction. Find out the expression. मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमको तीन बात समझनी है. फर्स्ट वन, what is the mean of the electromagnetic induction? Second one, Faraday's law of electromagnetic induction. And third one, mathematical expression for the Faraday's law of electromagnetic induction. मतलब बार बार हमने एक वर्ड बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इंडक्शन से चालू करते हैं स्टूडेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडक्शन? इंडक्शन दैट मीन्स अ हीट. अगर जो मैं पर्टिकुलर किसी एक वायर में, लेट अस कंसीडर अ कॉइल. व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉइल? Coil that means a L. Inductor that means a coil. Coil that means a spring. Let we consider total amount of current will be equal of capital I. Total amount of current passing through any inductor will be equal of capital I. Due to flow of amount we getting the some amount of heat. Some amount of heat that means a delta H. Delta H. Okay student. तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इंडक्शन या इंड्यूस. यू नो दैट वेरी वेल. इंडक्शन कुकर, आपने ये वर्ड सुना है इंडक्शन कुकर. क्या होता है इंडक्शन कुकर? सर, हम इंडक्शन कुकर में गैस नहीं देते हैं. जो आपके घर में नॉर्मल जो भी आप कुकर होगा, आप उसमें क्या देते हैं स्टूडेंट? गैस देते हैं, एलपीजी देते हैं. यू नो दैट वेरी वेल. CH4 मेथेन देते हैं. बट इन द केस ऑफ द इंडक्शन कुकर वी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब कहीं ना कहीं इंडक्शन को हम वहां से समझ सकते हैं. इंडक्शन दैट मीन्स अ हीट. अब यहाँ पर दो तरह के इंडक्शन होंगे. फर्स्ट वन सेल्फ इंडक्शन एंड सेकेंड वन म्यूचुअल इंडक्शन. व्हाट इज द मीन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन? फॉर एग्जांपल, अगर जो मैंने यहाँ पर कोई एक ऐसी पॉलिसी ली है जो 5 या 10 साल बाद मेरे पेमेंट को डबल करके रिटर्न देगा, तो सबमिट किसने करा? मैंने. रिटर्न किसको मिला? मुझे. तो ये हो गया सेल्फ बेनिफिट, मतलब सेल्फ इंडक्शन. किसी कॉइल में अगर जो करंट फ्लो कर रहे हैं और उसी कॉइल में उसके इम्पैक्ट दिख रहे हैं, if amount of current passing in the same coil and we getting the impact on the same coil, these phenomena are known as the self induction. But mutual induction का रियल एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल LIC पॉलिसी, जीवन के बाद भी जीवन के पहले भी. स्टूडेंट, पहले मैंने सबमिट करा और बाद में मुझे बेनिफिट मिले, मतलब मुझे तो मिले नहीं, किसको बेनिफिट मिले? माय फैमिली. तो ये हो गया सर म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल, आपने वर्ड भी सुना है, म्यूचुअल पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड. तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन. व्हाट इज द मीन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन? व्हेन वी provide the amount of current in the first coil and we getting the impact or heat on the second coil due to first coil, these phenomena are known as the mutual induction. Okay student, अब यहाँ पर हमने इंडक्शन वर्ड को समझ लिया, बट वी have to find the value of the meaning of electromagnetic induction. What is the meaning of the electromagnetic? Student, electro that means a electricity and magnet that means a magnet. Magnet that means a magnetic field. When electric field and magnetic field both are apply on the same thing, जब दोनों की प्रेजेंसी हो
और वहाँ पर कोई फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अ अमाउंट ऑफ फ्लक्स which produce in the presence of electric field and magnetic field both। आपने सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहाँ पर मैं वेव्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है स्टूडेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मीडियम, but electromagnetic waves not perpendicular to medium found in the curved shape, जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। स्टूडेंट, फ्लक्स which produce in the presence of electric field and magnetic field both are known as the electromagnetic induction। चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स अ डेफिनेशन ऑफ electromagnetic induction when a magnet and a conducting wire are relative motion। समझेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अ bar magnet that means a north pole and here south pole, otherwise here north pole, here south pole। when a bar magnet and second one conducting wire, that means soft iron core, मैग्नेट नहीं है तो मैं सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज करता हूँ। सॉफ्ट आयरन कोर covered by the insulating copper wire and directly connected with any external source। What is the meaning of the any external source? That means a powerful battery, combination of number of cell, positive end and negative end। स्टूडेंट फिर से आता है डेफिनेशन में, when a bar magnet and conducting coil are relative motion। अब relative motion का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर आप ये तो बोल नहीं सकते कि मैं कॉइल को लेके दौड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, मतलब ये कौन सी कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं समझाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई चार्जर, मोबाइल चार्जर, एंड अमाउंट ऑफ करंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आई फ्रॉम एनी सॉकेट, मतलब किसी पर्टिकुलर सॉकेट से मुझे एक आउटपुट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो जैसे ही करंट कैपिटल ए से पास होगा, काय के लिए, कैपिटल बी के लिए, बट अगर जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो करंट क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में मूव करता है। ठीक है, ए टू बी, एंड जैसे ऑफ हुआ बी टू ए, तो यहाँ पर जो करंट था, ओके, उसको हम करंट बोलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर किसी कॉइल पर उसके इम्पैक्ट होते तो हम उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। जब वो रिटर्न होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट मीन्स अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि करंट कुछ जा चुका है। ठीक है, सिचुएशन कौन सी है, ऑफ है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे इंड्यूस्ड, और जब वो रिटर्न हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या बताना चाह रहे हैं फैराडे? ठीक है, व्हेन अ मैग्नेट एंड द कंडक्टिंग कॉइल आर रिलेटिव मोशन, व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग इन अ इंसुलेटेड कॉपर वायर व्हिच कवर्ड एनी बार मैग्नेट। ओके स्टूडेंट, दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस कंडीशन में जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलेंगे, ठीक है, कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हमने क्या समझा, सिर्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इफ द कॉइल इज क्लोज्ड। अब मैंने इस कॉइल को क्या कर दिया स्टूडेंट, क्लोज कर दिया। ओके, डॉट दैट मीन्स अ क्लोज, डॉट हटा दूंगा, दैट मीन्स अ ओपन। इफ द कॉइल इज क्लोज्ड, द करंट फ्लो ऑन इट, देन दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। यस और नो? अगर जो मैं सर्किट को क्लोज कर दूं फिर भी उसमें कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा या कुछ ना कुछ करंट प्रेजेंट होगा, तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड
induced current, and these phenomena are known as electromagnetic induction. How to make electromagnetic induction? आप घर पे कैसे बना सकते हैं मैं प्रैक्टिकली समझ जाता हूँ सर। ठीक है, आप एक कोई सा भी बॉक्स ले लीजिए, स्वीट बॉक्स ले लीजिए, कैसा भी बॉक्स ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक स्क्रू का यूज करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्रू? यू नो दैट वेरी वेल। स्क्रू कुछ इस शेप में होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या होते हैं? थ्रेड्स। ओके स्टूडेंट, तो इस थ्रेड पर आप इंसुलेटिंग कॉपर वायर को अरेंज कीजिए और बॉक्स के नीचे आप उसको, ठीक है, किसी एक सेल के द्वारा और एक बटन दैट मीन्स की के द्वारा कनेक्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि जब उसको आपने ऑन कंडीशन में रखा है तो यहाँ पर जो छोटी मोटी, ठीक है, ऑल पिन्स आप रख रहे हो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है, व्हेन एनी स्क्रू दैट मीन्स अ मेटल, ठीक है, covered by any insulating copper wire and directly connected with any external source that means a battery। आप प्रैक्टिकल में एक बैटरी लगाइए, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यू गेटिंग द सम ऑब्जर्वेशन की स्क्रू जो है वो ऑल पिन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो गई इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि जैसे आप ऑफ करेंगे तो भी इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर बोला है, ठीक है, क्या बोला है? इफ द कॉइल इज क्लोज्ड, इफ द कॉइल इज क्लोज्ड द करंट फ्लो ऑन इट, देन दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमिना, इस करंट को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट, एंड दिस फिनोमिना आर कॉल्ड electromagnetic induction. I hope you getting the proper definition related to electromagnetic induction. Now time to define Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday put two law. How many laws are there student? Two law. First law जो है वो बेसिक है और सेकंड जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है। फर्स्ट लॉ, Whenever there is the change in the magnetic flux, अगर जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे from by use of the electric circuit, an electromotive force is induced in the circuit, there is the induced current flow on it, the induced current lost so long as there is the change in the flux। सिंपल बात है सर, हम कॉइल में जितना करंट देंगे उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा। इसी को फैराडे ने बोला है चेंज इन करंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट वी गेटिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यू नो दैट वेरी वेल, ये तो दुनिया में हर जगह होता है। मैं जितने वर्ड्स इधर से बोलूंगा आपको उतने वर्ड्स उधर से सुनाई देंगे। मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो आपको साउंड भी ज्यादा आएगा, मैं इंटेंसिटी डिक्रीज करूंगा तो आपको साउंड भी कम आएगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड वन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ। इसको यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, ठीक है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द ई दैट मीन्स द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द फाई दैट मीन्स अ फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। सर माइनस करा दैट मीन्स अ चेंज, डिवाइड करा टाइम से तो रेट ऑफ चेंज, that means induced electromotive force is directly proportional of the rate of change in magnetic flux। most important part, the value of induced electromotive force is directly proportional of rate of change in magnetic flux। Suppose Phi1 Weber, what is the mean of the Weber student? Weber is a SI unit of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? वेबर। लेट वी कंसिडर, मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें पर्टिकुलर टाइम t1 पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? Phi1। सपोज
the amount of magnetic flux on any particular closed electric circuit at a time t1 will be equal of phi1। और जैसे हमने धीरे धीरे टाइम बढ़ाया करंट तो फ्लो हो रहा है। सर सिंपल सी बात है, अगर जो हम किसी भी वेसल में, मेटलिक वेसल पे हम शुरुआत में हीट दे रहे हैं तो सर वो हीटेड कम होगा, बट लगातार हीट देने के बाद वो ज़्यादा हीटेड होगा। मतलब हम सोचे कि इनिशियल 5 सेकेंड में उसका टेम्परेचर सर इतना कम था, बट अभी हम 5 सेकेंड में 2 घंटे लगातार हीट देने के बाद फिर 5 सेकेंड देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब इनिशियल टाइम पे धीरे धीरे, बाद वाले टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा डेवलप होगा। तो बिल्कुल ठीक यहाँ पर बात बोलिए, लेट वी कंसीडर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एट अ टाइम t1 विल बी इक्वल टू phi1 एंड एट अ टाइम t2 हमने डेल्टा t थोड़ा सा टाइम इंटरवल लिया, टाइम बिकम t2 वी गेटिंग द फ्लक्स विल बी इक्वल टू phi2। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले चेंज बात करते हैं। चेंज that means phi2 minus phi1 only, change that means phi2 minus phi1 and rate that means divide by delta t। So finally we getting the rate of change in momentum, that means phi2 minus phi1 by delta t। क्या था फैराडे का सेकेंड लॉ? The value of induced electromotive force is directly proportional the rate of change in magnetic flux। Student, proportional replaced by any constant, that means k, and k will be equal of 1, that means E इक्वल टू phi2 माइनस phi1 डेल्टा t। ओके स्टूडेंट, अब ये जो चीज है इसको मैथमेटिकली समझेगा माय डियर बायोलॉजी स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर व्हाट इज द मीन ऑफ द डेल्टा t, दैट मीन्स अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। सपोज टाइम ड्यूरेशन विल बी इक्वल ऑफ 0। कभी ऐसा होता है कि आपने डेल्टा टी बोला है, मतलब बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, लगभग 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 0.0000000001 सेकेंड, मतलब लगभग जीरो है। सो डेल्टा टी रिप्लेस बाय लिमिट फॉर्म, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आई रिपीट, ई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, जब भी हम लिमिट लेंगे तो ये डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिमिट को रिप्लेस करते लिमिट को रिमूव करेंगे तो डेल्टा रिप्लेस इन द फॉर्म ऑफ डी। फिर से सुनिए सर, क्या बोला है मैंने? देखिए, जब हम डेल्टा इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमको लिमिट लेना पड़ेगा, और लिमिट को जब रिमूव करेंगे तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, इट इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्या हमने देखा है? फर्स्ट वन द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, सेकंड वन फेराडेस लॉ, फेराडे के दो लॉ देखे, एंड थर्ड वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फेराडे सेकंड लॉ। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 110% सॉल्यूशन related to Faraday's law of electromagnetic induction। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajata। स्टूडेंट प्लीज लाइक माय वीडियो। क्या करना है? सब्सक्राइब नहीं करा तो गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज 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 स्टडी ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच।